Hello friends, welcome to Divakar Physics. So in this video we'll solve some 4 marks mathematics questions MCQ based. So let us start. The first question is from the quadratic equation. Okay. So first question is the distance between station A and B by road is 240 kilometer and by train it is 300 kilometer. A car starts from station A with the speed of x km per hour, whereas the train starts from the station B with a speed 20 km per hour more than the speed of the car. So this is the question. Now first question is the time taken by the car to reach station B. So this is the question related to speed and time. So time equals to distance by speed. So what is the distance of the car? Car is moving from A to B. Okay, A to B, and the distance is 240 kilometer by road. Okay, 240 kilometer. So car covers 240 kilometer and it is traveling with x. So this much r. Okay, so this is the time taken by the car to reach the station B. So which option is correct? Then see, various options are given: 240 by x, 300 by x, 20 by x, 300 by x plus 20. So our option is first option correct, 240 by x. So how we have got? Distance by speed. Formula: distance time is equal to distance by speed. Okay, second question is the time taken by the train to reach station A. Now you see, again they are asking for the time. Now the train moves with the speed 20 kilometer per hour more than that of the car. So what is the speed of the car? X. Then train must be moving with speed x plus 20. So you have to read the full sentence. If you read half of the sentence, then train starts from station B with the speed of 20 km per hour. Then you may think that, like you see in the question, train starts from station B with the speed of 20 km per hour. If you read only up to this, then it seems that train is moving with 20 km per hour. No, so you read the full sentence. 20 km per hour more than the speed of the car. So speed of the car is x. So 20 more than means x plus 20. And what is the distance between A and B by train? So it is given 300 km by train. So distance is 300. So same way we can find time equals to distance by speed. So the answer is 300 by x plus 20. So this is the time taken by the train. Now let us see the option and mark it. तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन भी सही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन सही दिख रहा है 300 बाई एक्स प्लस 20. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है इफ़ द टाइम टेकन बाय ट्रेन इज़ 1 आवर लेस देन दैट टेकन बाय द कार. तो ये ध्यान से पढ़ना इसको. टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज़ 1 आवर लेस. टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज़ 1 आवर नहीं है, 1 आवर लेस कंपेयर किया है, लेस देन दैट ऑफ दैट टेकन बाय द कार.
तो आपको ये दोनों टाइम में कंपेयर करना है। तो ये टाइम टेकन बाय द कार और ये है टाइम टेकन बाय द ट्रेन। तो ये टाइम कम है और ये टाइम ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी इक्वेशन हम बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन को यूज़ करेंगे। सो विच एवर इज़ ग्रेटर यू टेक दैट फर्स्ट। 240 बाई एक्स माइनस 300 एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आवर्स डिफरेंस है, 1 आवर। और ये हम आवर में निकाल रहे हैं, तो आपको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम ले सकते हैं। फिर इससे इसको डिवाइड करना है, रूल है ना मेन, जो एलसीएम करके हम करते हैं। तो इससे इस जो एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 20 रह जाएगा, एक्स प्लस 20 इंटू न्यूमरेटर 240 माइनस, फिर इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बच जाएगा। तो x इंटू 300, तो 300x इज इक्वल टू 1। तो ऐसे सॉल्व करते जाएंगे हम। सो 240x, अभी ब्रैकेट खोल दीजिए, प्लस 4800 माइनस 300x। अब इधर भी हम सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें चाहिए। अभी ये फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसके नीचे 1 है तो 240, ओके, इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 4800 माइनस 60x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ है तो सेम आएगा। तो अभी सबको इस साइड में लेके आएंगे। सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4800 माइनस 60x इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखता है, तो इसलिए मैंने ये पहले इधर लेके आया एक्स स्क्वायर। अभी ये दो लाइक टर्म्स हैं, तो और सामने माइनस एक्स स्क्वायर है तो सबका साइन चेंज कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 80x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ये इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 80x माइनस 4800। ओके, तो अभी देखिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो ये ऑप्शन, तो बी ऑप्शन सही लग रहा है। 4800 ये दो जगह में आया है, तो ये साइन में देख लीजिए, तो ये साइन सही लग रहा है ना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आफ्टर दिस स्पीड ऑफ द कार, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ द कार। अभी इसका मतलब स्पीड ऑफ द कार क्या है, एक्स है, तो आपको एक्स निकालना है। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दो मेथड से आप कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 80 को हम मिडिल टर्म, जो 80 है उसको टू पार्ट्स में आपको करना है। दो नंबर खोजने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने से माइनस 4800 आएगा और ऐड करने से ये 80 आएगा, प्लस 80। तो इसमें देखिए 120 इंटू 40, ये दोनों करने से माइनस करने से 80 आ रहा है,
और इंटू करने से -4800, तो 80 के बदले में आप 120 माइनस 40 कीजिए। इसको ब्रैकेट खोलिए तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, और +120x माइनस 40x करने से +80x आता है। तो ये चेक कर लेना है साइन मिल रहा है कि नहीं, और ये दोनों इंटू करने से फिर -4800 आ जाए। फिर पहले दो टर्म में कॉमन लेना है, फिर दूसरे दो टर्म में कॉमन लेना है। फिर देखेंगे ये x + 120 x + 1 सेम आया कि नहीं। सही करने के बाद यदि सेम नहीं आता है तो आप कहीं पर मिस्टेक है। तो जब ये सेम आ जाता है x + 20 x + 20 ब्रैकेट में, फिर उसको कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x - 40, x ये -40 = 0। जब प्रोडक्ट में 0 होता है तो पक्का उनमें से कोई एक 0 होना चाहिए, सो आइदर दिस और दिस। ये 0 होता है तो -20 आ रहा है, और ये 0 होता है तो 40 आ रहा है, तो माइनस नहीं लेंगे तो ये 40 है। तो 40 इज़ द स्पीड ऑफ द कार। ठीक, तो 40 km/h, तो ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, सिमिलर ट्राइंगल्स। सो हियर क्वेश्चन इज लाइक दिस, इन द ट्राइंगल PQR, AB is parallel to QR, AB is parallel to QR, QP is parallel to CB, so QP is parallel to CB, and AR intersects CB at O. So AR को ज्वाइन करेंगे, then it intersects at O. Okay, then use the diagram, और कुछ साइड्स भी दिए हैं, 6 सेंटीमीटर, ओके, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द ट्राइंगल सिमिलर टू ARQ, ARQ, ये ट्राइंगल से कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा? तो ये ट्राइंगल सिमिलर होगा क्योंकि ये पैरेलल है, ये ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो ORC, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखिए ये कॉमन एंगल हो गया, और ये एंगल इक्वल ले सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज दिस आर पैरेलल। ये भी चाहे तो ले सकते हैं, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर ले सकते हैं, और इसका रीज़न है AA रूल। ओके, AA सिमिलरिटी रूल। अभी दूसरा क्वेश्चन है PQR एंड BCR। देखिए PQR किधर है, PQR एंड BCR, तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है। बाय विच एक्सियम, विच रूल? तो इसको भी ले सकते हैं। देखिए PQR BCR, तो R कॉमन एंगल हो गया। यदि आप कॉम्प्लिकेटेड लगता है यहाँ पर तो आप अलग से डायग्राम बना सकते हैं। PQR और BCR, देखिए R सेम है, सेम एंगल है, और ये भी हम ले सकते हैं इक्वल, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू PQ। तो दो एंगल मिल गए, थर्ड एंगल भी ले सकते हैं। तो दो एंगल होने से हो गया सिमिलर। लेकिन यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है? SAS AAA, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। हमें तीनों एंगल मिल रही है, तीनों एंगल। दिस इज कॉमन टू बोथ, दिस इज इक्वल टू दिस, B is equal to P because BC is parallel to PQ, C is equal to Q because this is parallel, corresponding angles. So that's why ये रूल होगा AAA, एंगल एंगल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ QC is 6 cm, CR is 4 cm, BR is 3 cm, लेंथ ऑफ RP, लेंथ ऑफ RP। तो यहाँ पर ये दिए हैं, ये BR दिया है 3 सेंटीमीटर, ये
CR दिया है, QC दिया है, तो अभी हमें पूछ रहा है RP, तो RP निकालना। RP ये पूरा, ठीक है, पूरा निकालना। अभी इसमें एक पैटर्न समझना है। जब ऐसे ट्रायंगल में साइड्स पैरेलल होते हैं, दूसरे लाइन के साथ, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये P Q R, और ये दिया है C 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये पैरेलल है ना, ये B हो गया। और हमें पूछ रहा है RP निकालो। तो ये जब पूरा लेंगे, ये पूरा इस ट्रायंगल का पार्ट है, और इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड देखिए BR दिया है, ये ध्यान दीजिए। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, PR बाई BR। सो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम पार्ट वाइज ले सकते हैं, टोटल बाय दिस, या सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट से भी ले सकते हैं। जब हमने पूरा लिया PR, तो इधर इस साइड का भी पूरा लेंगे, तो QR लेना है इधर में, और इसमें ये पार्ट हमें लिया BR सेकंड में, तो इसका ये CR लेंगे। तो ये याद रखिए पैटर्न, ये जब पूरा लेंगे तो यहाँ भी पूरा लेंगे, जब ये पार्ट लिया तो ये पार्ट लेंगे। यदि आपको PB लेना था तो QC भी ले सकते हैं, QC लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकते हैं, और प्रोपोर्शनल, जैसे ये पैरेलल टू दिस है, तो इसका मतलब हम ये इसका किसी भी तरीके से रेशियो ले सकते हैं, लेकिन एक ही पैटर्न से लेना। अभी मैंने PR चाहिए, इसलिए यहाँ पर QR ले लें टोटल इस साइड का, और इधर BR दिया है तो इधर CR लेंगे। यदि PB चाहिए होता तो QC ले लेता, चलेगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। PR हमको चाहिए, BR 3, QR देखिए, QR टोटल 10, और CR है 4। तो ये ध्यान देना, 10 5 2, then PR equals to 5/2 into 3, so 15/2 7.5। देखिए PR आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये राइट 7.5। अभी रेशियो ऑफ PQ एंड BC बोलता है। फिर से वही क्वेश्चन है इसी टाइप का, PQ एंड BC। अभी ये क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, PQ जब लेंगे तो पूरा ट्रायंगल लेना है, बिकॉज PQ इज़ द पार्ट ऑफ फुल ट्रायंगल, और BC लेना है तो ये छोटा ट्रायंगल लेंगे। तो इसमें भी हम PQ बाई BC, तो PQ बाई BC इज इक्वल टू, ये लेना है, PQ पूरे ट्रायंगल का पार्ट है तो QR ले लीजिए, और BC इस छोटे ट्रायंगल का पार्ट तो CR ले लीजिए, करेस्पॉन्डिंग QR CR। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो QR कितना है, QR ध्यान दीजिए टोटल लेना है, 6 नहीं लेना है ब्लाइंडली, 6 + 4 10, और CR है 4, सो 5:2, so 5:2 is the answer। तो देखिए ये ऑप्शन करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा करेस्पॉन्डिंग पार्ट और करेस्पॉन्डिंग साइड्स से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम AP। सो क्वेश्चन इस तरह से, द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3n + 1। तो AN है 3n + 1। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर। तो इसमें अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म होगा
तो n a का n के बदले में 1 लगा देना, बिकॉज दिस इज द nth टर्म। सो 3 इंटू 1 प्लस 1, सो ये 4 हो गया। और a2 कितना होगा, 3 इंटू 2 प्लस 1, देखिए यही क्लियर हो जाता है। 3 इंटू 2 प्लस 1 7 हो। थर्ड टर्म यदि आप ऐसे निकालते हैं, सो 3 इंटू 3 प्लस 1, सो 10 आ गया। सो 4 7 10, तो ये ऑप्शन राइट आ रहा। देखिए यदि पहला टर्म 4 आया ना, तो देखिए पहला टर्म में 4 यही वाला है, तो ये भी इससे पता चल जाता है। इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, तो ये राइट है। हम ये ना निकाल के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आइडिया जल्दी मिल जाता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन करिए, बी कंफर्म्ड, फिर उसके बाद टिक कीजिए। जब कंफर्म होंगे तभी टिक करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कॉमन डिफरेंस। अभी देखिए कॉमन डिफरेंस के लिए 2 टर्म चाहिए, तो हमने जो निकाला सही किया। सो 4, फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म 7, तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 4, तो 3 हो जाएगा। या 10 माइनस 7 3, सो 3 इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो इसमें कौन सा टर्म इस एपी में नहीं आता है। तो इस एपी में यदि ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा हर एक को चेक करने के लिए। एक पैटर्न देख लीजिए, 3n प्लस 1, यानी कि 3 का टेबल में 3 इंटू n है ना, तो ये 3 का टेबल में आएगा। 3 का टेबल प्लस 1, यानी कि जो भी 3 के टेबल में है उससे 1 ऐड कीजिए, वो टर्म होगा, और दूसरा नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं ये 3 का टेबल में नहीं है, 3 इंटू 8 24 प्लस 1, ये हो जाएगा। अभी इसमें देखिए 27 दिख रहा है, सो 3 इंटू 9, सो प्लस 1 नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे समझना पैटर्न से। सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी, ठीक है। इसके 10 टर्म लेंगे, जैसे 4 7 10 है। 10 टर्म्स इफ यू टेक, देन व्हाट इज द सम। तो इसमें n हो गया 10 टर्म्स लेना है। ए हो गया, या a1 जो था वो 4 है, कॉमन डिफरेंस है 3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला है। और एक फार्मूला है n/2 a प्लस l, ये भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको लास्ट टर्म यानी कि 10th टर्म निकालना पड़ेगा, तब ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। दोनों से कर सकते हैं। तो चलिए हम पुट कर लेते हैं 10/2 2 इंटू 4 प्लस n 10 हो गया, तो 9 इंटू 3, तो ये 5 हो गया। 8 प्लस 27, 5 इंटू 35, सो 5 इंटू 25 17, तो ये Sn होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ये फार्मूला याद रखिए, सम ऑफ द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। कभी जो लास्ट टर्म मिल जाता है तो ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट वाइज आने वाले हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।